Welcome to Mathswala Academy. Learn smart and build concepts. For classes 5 to 12 and competitive exams, enroll today. Hello everyone. I hope you will be will be fine. So let's start today topics. Today topics is pair of linear equation in two variables. First lectures is completed, in which you have studied, you have learned the basic structure of pair of linear equations and how to solve graphical by the graphical methods of the pair of linear equations in two variables, and how to plot a graph when you have a two pair of linear equations. All these you have studied. Now today you will study the if you have a pair of linear equation in two variables, there is a how many types of conditions, how to you identify that these pair of linear equations are intersecting at a point or parallel each other or coincides. And if we talk about in algebraic interpretations, when when it gives a unique solution or no solution or infinite solution. So let's start today session. First of all, you have a suppose you have a two pair of lines represented a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is first equation and this is second equation. First of all, you have to find the coefficient of x and y and constant term, and the ratio of the coefficient of x and y and the constant term is if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. If you see a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then the pair of lines, the pair of linear equation, the pair of linear equation will be coincide. यदि आपके पास जो है कहीं पर भी आप जो है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 जो है आपको मिलता है, जब इनका कंपैरिजन करते हैं और इस रेशियो में इसका मान निकालते हैं आप, अगर आपको ऐसा कंडीशन मिलता है तब जो है यह क्या होगा, यह एक कोइंसाइड हो जाएगा. कोइंसाइड करने का मतलब यह है कि यदि आपके पास दो लाइन इस तरीके से हैं, दो लाइन कहीं पर भी हैं, दो लाइन्स आपके पास कहीं पर भी है, टू लाइन्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है,
टू लाइन्स है आपके पास, एक ले लेते हैं सी एंड डी, देयर इज अ टू लाइन्स। इफ इफ जो है यदि यह कोइंसाइड हो जाते हैं तो यह जो है क्या करेंगे, सी डी जो है ए बी पर आ जाएगा, यहीं पर जो है कहीं पर this is C and D. This is called a coincide conditions. Coincident, यह दोनों जो है एक ही पर हो गए, संपाती हो गए, एक पर हो गए, अलग अलग थे दोनों क्या हो गए, एक पर हो गए। ठीक है, और ऐसे कंडीशन होते हैं, इस तरीके से जो है कि हम इसको रिप्रेजेंट करके जो है समझाया जाता है, और आपको जो है कोइंसिडेंट का जो है कि एक कंडीशन मिलता है। ठीक है, और साथ में जो है कि हम और पढ़ेंगे इसमें भी जानना है। तो क्या हो गया, इट हैव मेनी सॉल्यूशन, इट हैव मेनी सॉल्यूशन, इट हैव मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, दो कंडीशन यहाँ पर चल रहे हैं। पहला क्या है कि अगर आपको a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो इसमें क्या मिलेगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, लाइंस होंगे, वो कोइंसाइड होंगे, और साथ ही साथ जब कोइंसाइड होंगे तो उनके जो है कई सोल्यूशन होंगे, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यह रहा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं इसमें, if a1/a2 if a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। यदि आपके पास जो है two pair of lines represented as a pair of equations and you have find such type of condition, then you can say that the pair of linear equation will be parallel, and it have no solution, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यदि आपको ऐसा कंडीशन मिलता है या कंडीशन करने के लिए देता है, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी है, अगर ऐसा कह दे तो आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा, अगर ऐसा कह दे तो आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा, या फिर ऐसा आपको मिलता है तो इस तरीके से आपको जो है कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इफ a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, then the pair of linear equation will be parallel, it have no solution, and it have no solution. What is third condition? Third condition is if a1/a2 does not equal to b1/b2, if a1/a2 does not equal to b1/b2, then you can say that
the pair of linear equation will be intersect and it have and it have only one solution, or you can say unique solution. Unique solution. मुझे आशा है कि आप लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, 3 कंडीशन है आपके पास। इफ you have a such like that equation, 2 equations, then if you compare the ratio of the coefficient of x and y and the constant term c1 and c2, if you find such like that a condition, then you can say that the pair of linear equation will be coincide and it have a many solution, infinite solution or infinite solution, किसी प्रकार से भी बोल सकते हैं। if you have a find, if you have a such like that condition, the ratio of the x and y and the constant term, if a1 upon a2 does not equal to is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, then the pair of linear equations will be parallel, it have no solution। ठीक है, and it have no solution। the third is a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, if you have a find such like that a condition, then you can say that the pair of linear equations will be intersect and it have only one solution or unique solution। you can add one more thing, if you find such like a condition, कोइंसिडेंट है, नोट करके यहां पर आप लिख सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। यह क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। यह क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। एक और कंडीशन होता है इसमें एंड, इसमें एंड करके भी लिख सकते हैं आप, नोट करके या एंड करके भी लिख देंगे। इट हैव नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आपको जो है ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट करके शब्द आपको मिलेगा कि यदि यह कंसिस्टेंट है, यदि यह कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल रूप से ग्राफ को प्लॉट करिए या सॉल्यूशन प्राप्त करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। और यह भी क्या है, यह कंसिस्टेंट है। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। चलिए, ओके। नाउ दिस इज द all summary of the linear of pair of the equation in two variables। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए, अब जो है हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग जो इन विच देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल substitution method and second one elimination
एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ वी टेक फर्स्ट substitution method. What is this? What is substitution method? How to solve by substitution method? तो इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आपके पास जो है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए जाते हैं और उसमें जो है किसी एक वेरिएबल को जो है किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में जो है मान को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और उसी जो है किसी जिस वेरिएबल के टर्म में जो है दूसरे वेरिएबल का हम लोग मान निकालते हैं उसका मान जो है दिए गए दूसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं और वहां से एक जो है वेरिएबल का मान निकालते हैं और फिर उसी वेरिएबल की सहायता से दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। चलिए, बात समझ में कुछ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग जो है एग्जांपल से। सपोज यू हैव अ टू सॉल्यूशन, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x minus 15y is equal to 2. This is a first and second one कौन सा है, x plus 2y is equal to 3. This is second equation. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड्स जिसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरण विधि, क्या बोलते हैं, स्थानांतरण विधि, स्थानापन्न मेथड, ठीक है, स्थानांतरण विधि। स्थानांतरण मतलब है कि किसी एक का मान जो है स्थानांतरित कर देंगे हम लोग दूसरे इक्वेशन में। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 7x minus 15y is equal to 2. Then 7x is equal to 15y प्लस 2, 15y को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15y प्लस 2 बाई 7, 15y प्लस 2 बाई 7, ठीक है, दिख रहा है। अब इस x का मान लिखेंगे putting the value of x in इक्वेशन 2 रखेंगे तो क्या है, पहले तो लिख देंगे कि x प्लस क्या दे रखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें x के जगह पे क्या रखेंगे, इतना वैल्यू 15y प्लस 2, 15y प्लस 2 बाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। समझ रहे हैं, x की जगह पर यहाँ पर मान यहाँ से ले लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जो है अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन होता है कैसे होता है वह आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी अपान भी क्या कर देंगे 1, क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, इस तरीके से कर लेंगे। या फिर आप कह दीजिए आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल करिए तो 15y प्लस 2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y और इन दोनों का आपस में करेंगे और इनको इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, इधर भेजेंगे तो 7 1 जा 7 और 3 कितना हो जाएगा 21। बात समझ में आ रहा है। अब
ये भी समान राशि पता है आपको। अलजेब्रिक जो सोल्यूशन होता है, अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन होता है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, अलजेब्रिक डिवीजन होता है। तो उन सब का जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में है। फिर भी जो है हम ये मान के चलेंगे कि आपको जो है याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, समान सजातीय, जैसे हम लोग बोलते हैं सजातीय जो है वेरिएबल्स का चर राशियों समान चर राशियों का जोड़ होता है, समान चर राशियों का घटाना भी होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो है समान और असमान दोनों चर राशियों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समान समान का होगा, एक समान दोनों है और दोनों प्लस है, तो कितना हो जाएगा 29 y, और यहाँ पर कितना है 112, और इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 19, और 29 y इजकल टू 19, देन y इजकल टू 19 अपॉन 29, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। देन दिस वैल्यू you have to put in the given, you let it third equation। कहाँ रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में इसको रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 15, y का मान कितना है 19 अपॉन 29 प्लस 2 बाई 7। यहाँ से मान जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यह किसी से कटने वाला है नहीं, तो उसको क्या कर लेंगे, कैरी है, और 15 बन जाए 15 और 13 28। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल हो गया, और प्लस इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 29 टू जा कितना हो जाएगा 58 अपान, और चूंकि a अपान 1 है और ये 29 इसके अपान 29 है, तो इसका ये मल्टीपल हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, इनको ऐड कर देंगे 8 5 13, और 8 5 13 और 1 कैरी 14 और 2 1 3 अपान, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 7। क्या यह 7 से कट रहा है, तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा कितना हो जाएगा 49 अपान 29, यह रहा x का वैल्यू। दिस इज अ x वैल्यू एंड दिस इज अ y वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको इसी मेथड को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, और हिंदी में स्थानांतरण जो है विधि बोलते हैं इसको, और इसी तरीके से सॉल्व भी करना है। अगर बोलता है आपके जो है एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में जो है क्वेश्चन में स्पेशली रूप से जो है बोलता है कि आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे करना होगा। और अगर एग्जाम में आपको बोलता है कि नहीं एलिमिनेशन विधि से जो है कि इसको सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर नहीं बोलता है, कोई भी प्रोसेस नहीं बोलता है, बस बोलता है कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन you have a choice, you can use any methods। ओके क्या साथियों, आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते, जिससे कि ताकि आप लोग जो है आराम से भी देखें। छोटे छोटे वीडियो देखना आप लोगों को पसंद भी है, तो मैं चाहता हूं कि छोटा ही वीडियो रखा जाए, और कल के सेशन में जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और इस पर एक और एग्जांपल लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है फिर एलिमिनेशन मेथड से देखा जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका पूरा चैप्टर जो है जो मेथड से सीखने वाला था वह कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, और एक्सरसाइज में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनका एक एक करके सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जो है ऐसे ही इस चैनल से बने रहिए, और जो भी साथी नए हैं वह भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे हैं तो उसे फॉलो कर लें, और अपने मित्र यार को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।
नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।